2 Peter chapter 1 verse 3 says something very beautiful. दूसरे पत्रस की किताब पहला अध्याय और तीसरे वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। It says his divine power has given us all things pertaining to life and godliness. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमको दिया गया है। My brothers and my sisters, the word of God doesn't say some things or few things. और वचन में ये नहीं लिखा हुआ है कि चंद बातें या कुछ बातें, It says all things. लिखा हुआ है कि सारी बातें हमको दी गई All things are given to us सारी बातें हमको दी गई है pertaining to life, number 1. जीवन को लेकर Number 2, for godliness. और ईश्वरीय सामर्थ्य को लेकर। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it's rather unfortunate that we are living in defeat. लेकिन दुर्भाग्यवश हम एक पराजय के जीवन को जीते हैं। It's rather unfortunate our eyes are blinded. हमारी आंखें मानो मूंदी हुई है We are being deceived by the enemy time and again. और बार बार शत्रु जो है हमको भ्रम में डाल देता है। This morning that the Lord want to break us free from every such clutch of the enemy in the name of इस Jesus सवेरे के Christ. वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि हमको ऐसे पकड़ से, शत्रु के ऐसे पकड़ से वो हमको छुटकारा देना चाहते हैं। He wants to give us the freedom so that we may be what we are called to be. वो हमको आजादी देना चाहते हैं ताकि हम वो बन जाए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। I want us to open our Bibles to 1 John chapter 5 verse 4. आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, पहले यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय और 4था वाक्य। Again it says something very beautiful. यहाँ पे भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है। I'm going to read for us in the NKJV version first and then later I'm going to switch to NLT, that's New Living Translation. पहले अंग्रेजी में NKJV वर्जन से मैं पढ़ूंगा, उसके बाद न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़ूंगा। Why New Living Translation? Because I want us to understand this verse very simply and clearly. क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझें। It says, NKJV version says, for whatever is born of God overcomes the world. Listen to this carefully. It says, whatever is born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। Further down it says, and this is the victory that has overcome the world. और वह विजयी जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, That is our faith. ये हमारा विश्वास है। My brothers and my sisters, I'm going to read it now from in NLT. It says, every child of God defeats this evil world. लिखा हुआ है कि हर एक परमेश्वर का बच्चा, संतान, इस दुष्ट संसार को परास्त करता है। Mind you, you have the power to defeat this evil world. आप ये जान लीजिएगा कि आप में सामर्थ्य है कि आप ये दुष्ट संसार को परास्त करें। It talks about us, the children of God. ये हमारे बारे में कहा गया है, परमेश्वर के बच्चों के बारे में कहा It गया है। says every child of God. लिखा हुआ है परमेश्वर का हर एक बच्चा It says defeats this evil world. इस दुष्ट दुनिया को हरा देता है। And we achieve this victory through our faith. और हम इस जय को कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे विश्वास के जरिए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you have it in you, I have it in me. आपके अंदर है, मेरे अंदर है। It is just a matter of understanding the word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन को समझने की देरी है। When you understand, everything about you will change. जब हम समझ लेते हैं तो हमारे बारे में सब कुछ बदल जाता I है। pray this revelation may settle down in your heart and mind in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है कि ये प्रकाशन आपके मन में, आपके हृदय में बस जाए मसीह यीशु के नाम से। To live victoriously, you need 3 things. जयवंत जीवन जीने के लिए 3 बातों की जरूरत The है। Lord want to expose those 3 things to us this morning. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर ये 3 बातों का खुलासा करना चाहता Number 1, God wants us to restrict the enemy. है। पहली बात तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम शत्रु को रोक दे। You and I should restrict the movement of the enemy in our life. हमारे जीवन में शत्रु के हालचाल को हम रोक दे। Let's open our Bibles to Matthew chapter 18. मत्ती के 18वें अध्याय में हम खोलते हैं। I'm going to read from 18 to 20. This is word of God. It's not my word. This is not anybody's word. This is purely the words of Jesus Christ. मैं 18 से 20 वे वाक्य तक पढ़ूंगा और ये जान लीजिएगा कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है। पवित्र शास्त्र में ये दर्ज है, यीशु मसीह ने इन बातों को बोला हुआ है। And I'm going to read it now for us from the CEV, that's Contemporary English Version. It says, Jesus said, I promise you that God in heaven
will allow whatever you allow on earth, but He will not allow anything you don't allow. I promise that when any two of you on earth agree about something you are praying for, my Father in heaven will do it for you. Whenever two or three come together in my name, I am there with you. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Please understand that whatever that you bind on earth will be bound in heaven. और लिखा हुआ है कि जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। Whatever that you loosen on earth will be loosened. जो भी आप पृथ्वी पर खोल देते हैं वो खोला जाएगा। If you command a demonic force to depart at your command, it has no other option but to depart. अगर आप जो है दुष्ट शक्तियों को आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं निकल जाने के लिए, तो उनको वहां से निकलना ही होगा। Enemy's movement you can restrict by saying be bound in the name of Jesus. और देखिए शत्रु के हालचाल को आप रोक सकते हैं ये कहकर कि मैं तुमको हुक्म देता हूं, बांधता हूं यीशु मसीह के नाम। It has no other option but to be bound. और कोई पर्याय नहीं है फिर शत्रु को, वो बंधा हुआ रहेगा। My brothers and my sisters are coming together is not an ordinary thing. I'm telling you, when we come together, we bring down heaven on earth. और देखिए हमारा इकट्ठा होना सामान्य बात नहीं है। जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आते हैं। Let me tell you this also very clearly. इस बात को भी मैं आपसे स्पष्ट रीति से कहना चाहूंगा। Satan doesn't want you to know this particular truth. शैतान नहीं चाहता है कि हम इन सत्य बातों को समझ ले या जान ले। He wants to discourage you as much as वो possible. जितना हो सके हमको निराश या निराशता में रखना He चाहते wants to हैं। keep you in the darkness. He doesn't want you to come to the light of this revelation. निराशता में रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हम प्रकाश में आए, ये प्रकाशन में हम आ जाए। वो चाहता है कि हम अंधकार में ही बने रहे। Because when we come to this knowledge, क्योंकि जब ये ज्ञात हमको होता है, if we come to this revelation, जब ये प्रकाशन हम पर उजागर होती है, He will be right under our feet. तो वो हमारे चरणों के नीचे ही बना रहेगा। We will crush his head. हम उसको कुचल सकते हैं। He knows that's why he wants to stop us. और वो जानता है और इसीलिए वो हमको रोकना चाहता है। My brothers and my sisters, let's go out and use every power that is given to us, because that is for use. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी सामर्थ्य हमको दिया गया है उसका उपयोग हम करें, क्योंकि हमारे उपयोग करने के लिए हमको दिया गया है। Number two thing that the Lord wants us to teach us today. और दूसरी बात जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं, The Lord is challenging us. Dare to believe in His word. ये है कि आप जो है साहस रखें कि आप उनके वचन पर विश्वास रखें। Don't doubt. Dare to believe in the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, आप शंका मत करिएगा। When the word of God says, lay your hand on the sick and the sick shall be healed. जब वचन में लिखा हुआ है कि आप अपने हाथ को बीमारों पर रखो और बीमार लोग जो है वो ठीक हो जाएंगे, Don't doubt, just do it. तो इस पर संदेह मत करना, विश्वास के साथ ये करना। When the word of God challenges you and say that test me when you sow. और जब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मुझको परख कर देख, जब बोने के बारे में बात आती है, Just go out and sow. Don't doubt. आप जो है आगे बढ़कर बोना, शंका या संदेह मत करना। I want to bring a revelation this morning. इस सवेरे के वक्त मैं एक प्रकाशन को लाना चाहूंगा। When a farmer goes out to sow the seed, जब एक किसान बीज को बोने जाता है, you know what he's saying? आप देख समझ जाइएगा कि किसान क्या बोल रहा है। He's saying two things. दो बातों को बोल रहा है। He's saying, Lord, this is the seed, this is the type that I want to see when my harvest comes. और किसान ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो बीज को मैं बो रहा हूँ, यही बीज का प्रकार मैं चाहता हूँ जब उपज होगी। And number two that he's saying, और दूसरी बात जो किसान कह रहा है, Lord, what I'm sowing, not just that, but I want a harvest of it.
और ये कह रहा है कि परमेश्वर मैं एक बो रहा हूँ, लेकिन मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे बहुगुणित चाहिए जब उपज आएगी। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, any time that you sow the seed, you pick it up and look at it and speak to it. जब कभी भी आप बीज को बोते हैं, आप बीज को उठाइए, उसको देखिएगा और उससे बात कीजिएगा। Speak to heaven. आप स्वर्ग से बात कीजिएगा Lord, I am sowing this money. कि परमेश्वर मैं ये पैसे को बो रहा हूँ Lord, I want to see this type of money come back to me. और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का पैसा जो है मेरे पास वापस आ जाए। Not just that this type of money come back to me, केवल ये इस प्रकार का पैसा मेरे पास वापस ना आए, but it may come back to me with a great harvest, लेकिन ये बड़े ही उपज के साथ आए, with 100-fold, with 1,000-fold, with 1,000,000-fold. और 100 गुना और बहुत ही ज्यादा अत्यधिक। And the Lord is able to do that. और परमेश्वर ऐसे करने के लिए सक्षम है। But this morning the Lord is daring you. लेकिन इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपको चुनौती देते हैं। Whatever the promises that He has made in the Word of God, जो भी वादे उन्होंने किए हुए हैं वचन में, without doubt believe it. बिना संदेह किए विश्वास रखिएगा। When you believe it, जब आप विश्वास रखते हैं everything about you must change in the name of तो Jesus. आपके बारे में सब कुछ को बदलना होगा मसीह यीशु के नाम से। Number 3 thing that the Lord wants us to do today, और तीसरी बात जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें आज, rather the Lord is talking to us today. परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं आज, He is telling us, He is challenging us once again. फिर एक बार हमको चुनौती दे रहे हैं He is telling us, wake up, you dreamer. और वो कह रहे हैं कि तू जो स्वप्न देखता है तू उठ। You know, there is a dreamer in us and we are put him to sleep. हमारे अंदर जो है एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है और हमने उसको सुलाया हुआ है। And God wants the dreamer to wake up. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति उठ जाए। It is when we wake up and dream a big dream, और जब हम उठते हैं और एक बड़े दर्शन को या बड़े स्वप्न को देखते हैं, God is able to fulfill it. परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए सक्षम है। Listen to this, another truth that I want to talk here. और एक सत्य को मैं आपको बताना चाहूंगा, Don't expect small things from God. परमेश्वर से छोटी बातों का अपेक्षा मत कीजिएगा। Expect something too huge for you to achieve. और आप जो हासिल नहीं कर सकते हैं वो इतनी बड़ी बात को आप अपेक्षा कीजिएगा। You know, when God actually brings us to the reality of the dream, जब परमेश्वर जो है वो स्वप्नों को हकीकत में बदलते हैं, that you may know that it is not you who achieved it, the world may know that it is not you who achieved it, it is God, and all glory may go to God. तब जाकर आप ये बात को समझ लोगे कि मैंने हासिल नहीं किया हुआ है, दुनिया भी ये जान लेगी कि आपने हासिल नहीं किया हुआ है। ये सारी बातें फिर परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, don't worry, चिंता just dream चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ स्वप्न देखिएगा and dream God-sized dreams. और परमेश्वर जितने बड़े हैं उतना बड़ा सपने को आप देखिएगा। God is about to bring those dreams to fulfillment. परमेश्वर उन स्वप्नों को पूरा करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I want us to go with these positive things in mind and heart. हम चाहते हैं कि ये सकारात्मक बातों को अपने मनों में, अपने हृदय में रखकर जाइएगा। As you go into the day with these things, जैसे आप इन विचारों के साथ इस दिन में जाते the हैं, Lord shall surely shower His blessings upon you. परमेश्वर अपने आशीषों को आपके जीवन पर उंडेलेंगे। You shall not be the same. आप जैसे थे वैसे नहीं बने रहोगे। You shall be triumphant आप जयवंत बने रहोगे to His glory उनकी महिमा के in लिए, the name of यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। You have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।